Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today the class topic 11. The topic is the sole proprietorship. I discuss with you about the sole proprietorship. The sole proprietorship means that it refers to that form of business organization which is owned by a single individual who is solely responsible for its management and having all the profits and losses of the business. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? आपकी एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन ओन करता है. कहने का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ओनरशिप होगी वो सारी ओनरशिप एक सिंगल इंडिविजुअल की होगी. वो इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट. वो जो है आपकी इसकी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एक सिंगल पर्सन ही आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट मैनेजमेंट का वर्क करेगा एंड हैविंग ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक सिंगल पर्सन वो खुद ही बियर करेगा. तो वो आपकी क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. Features of sole proprietorship. There are various features of the sole proprietorship. The feature of the proprietorship is, first one is individual ownership. The second one is sole management. And third one is freedom in selection of business. Fourth one is unlimited liability. And fifth one is no separate legal entity of business, undivided risk, suitable for some special form of business. And the last one is secrecy. There are 8 features of the sole proprietorship: individual ownership, sole management, freedom in selection of business, unlimited liability, no separate legal entity of business, undivided risk, suitable for some special form of business, and last one is secrecy. Now I discuss all the features one by one. The first feature of the sole proprietorship business is that individual ownership. Individual ownership. The first feature of the sole proprietorship is that there is only one person who start a particular business and all the amount which is need to start a business, the amount will be invested by a proprietor. एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप. इसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी आपकी अमाउंट है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक सिंगल पर्सन आपकी सारी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा. इस पे जो ओनरशिप है वो आपकी किसकी होगी? एक सिंगल इंडिविजुअल की होगी.
क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जितनी भी अमाउंट हमें नीड है वो सारी अमाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करने का काम कौन करता है? आपका सोल प्रोप्राइटर। एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो सिंगल पर्सन ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारी अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा। नाउ द सेकंड वन इज सोल मैनेजमेंट। It is the next feature of the sole proprietorship. In that feature, the management work of the business organization means that all the operational activities of the business organization and non-operational activity of the business organization is managed by a single person. There is no any type of the manager who can manage different type of the activity. The only and only one person, the owner is the person who manage all types of the activity in the business organization, and he will manage itself. Because there is no any type of the disturbance of the other person, a single person can manage effectively all the activity and there is no any type of the disturbance. Now the third feature is unlimited liability. Unlimited liability means that the particular person is responsible to cover all the loss of the business organization. Means that if a business suffer with loss, business organization में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, तो जितने भी लॉसेज हैं उन सभी लॉस को बियर करने के लिए एक सिंगल पर्सन है। वो सिंगल पर्सन जो है सिर्फ उसकी डोमेस्टिक असेट को ही यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन को बैंकरप्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आपका क्या डिक्लेयर होगा? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा। आपकी जो एक पर्टिकुलर ओनर है वही सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी लॉस हो रहा है वो सारा लॉस एक सिंगल पर्सन है उसे ही बियर करना है। तो एक टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लॉस होंगे उस लॉस को कवर करने के लिए आपके ओनर को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उसकी डोमेस्टिक असेट ही यूज नहीं होगी, बल्कि हम उसको बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हार्मफुल है। तो इट इज द थर्ड फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाउ द फोर्थ वन इज फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी भी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, एक सिंगल पर्सन जो है सभी पर्सन से वेरियस पर्सन से डिस्कस करने के बाद अपने लेवल पर कोई भी बिजनेस जो है उसको सेलेक्ट कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स नहीं है कि उसे एक पर्टिकुलर बिजनेस ही स्टार्ट करना है। वो सभी पर्टिकुलर पर्सन जो आपके एक्सपर्ट पर्सन है उन्हें डिस्कस करने के बाद जो बिजनेस उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है वो उसको स्टार्ट कर सकता है। साथ ही साथ कभी भी फ्यूचर में अगर उसे ये लगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की नीड है तो वो अपने लेवल पर अपने बिजनेस को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन है, उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन लेने हैं, उसे ही बिजनेस को मैनेज करना है। It is the fourth feature of the sole proprietorship that freedom in selection of business. A single person can select any type of the business on the basis of himself. Now the fifth feature is secrecy. Secrecy the best form of the business organization, because for the sole trade the secrecy, all the information related to the business organization is kept by the owner. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी किसके पास रहती है? एक सिंगल ओनर के पास, मीन्स सोल ट्रेडर के पास। तो एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बेस्ट फॉर्म है जिसमें सबसे ज्यादा सीक्रेसी होती है। एक सिंगल पर्सन है, उसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी टाइप की अपनी इन्फॉर्मेशन किसी अदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करता। तो आपके जो कंपटीटर है, आपके बिजनेसमैन जो भी कंपटीटर है वो आपके सोल ट्रेड में आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को नहीं जान पाएंगे, और आप इस फीचर का बेनिफिट उठा के आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना हाई लेवल तक पहुंचा सकते हो।
तो सबसे बेस्ट आपका जो फॉर्म है सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। कभी भी क्वेश्चन आए द बेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेसी, द आंसर इज द सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ द नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप की एक मेन फीचर ये भी है कि इसके अंदर आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। कहने का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस के नाम से कोई भी आपकी असेट्स हैं, वो जितनी भी असेट्स हैं वो सारी असेट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसमैन की है। तो सोल ट्रेड के अंदर जो भी आपका सोल ट्रेडर है वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट नहीं है। किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सोल ट्रेड के नाम से अगर किया जा रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस एग्रीमेंट के लिए आपका जो है सोल ट्रेडर भी क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। तो आपकी जो सोल ट्रेड है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें स्पेशल फीचर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। इसमें आपका ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट नहीं है। बिजनेस की एक्टिविटी के लिए आपका सोल ट्रेडर रेस्पॉन्सिबल है और सोल ट्रेडर की एक्टिविटी के लिए बिजनेस रेस्पॉन्सिबल है। तो इसमें जितनी भी एसेट्स हैं आपकी, सारी एसेट जो भी बिजनेस के नाम से हैं वो आपके बिजनेसमैन की ही होंगी। तो इट इज द सिक्स्थ फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड रिस्क का मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का कोई भी लॉस हो जाए, कोई भी रिस्क हो जाए, वो सारे लॉस और रिस्क है वो एक सिंगल पर्सन को ही क्या करने पड़ेंगे, बियर करने पड़ेंगे। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपके प्रॉफिट हो रहे हैं या जितने भी लॉस हैं वो सारे के सारे लॉस जो है आपके सिंगल पर्सन की पॉकेट में जाएंगे, ओनर के पास जाएंगे। तो कहने का मतलब इस एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो सारा प्रॉफिट किसको बियर करना पड़ेगा, मतलब सारा प्रॉफिट किसकी पॉकेट में जाएगा, ओनर की पॉकेट में। और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो उस केस में वो लॉस भी डिवाइड नहीं होगा, वो सारा का सारा लॉस जो है एक सिंगल पर्सन को ही बियर करना पड़ेगा। तो ये भी इसकी फीचर है अनडिवाइडेड रिस्क। नाउ द लास्ट फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट सुटेबल ओनली फॉर स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो भी आपकी स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस है उनके लिए आपकी ये सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल है। जैसे पर्टिकुलर फार्मर है आपका, वो एग्रीकल्चर कर रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई भी बिजनेस है उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट रहेगी। ऐसे ही आपका जो है जॉब है स्टिचिंग की, तो उस केस में भी आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। ऐसे और भी बिजनेस है आपके जो सोल प्रोप्राइटरशिप जिसके अंदर बेस्ट रहता है, स्वीट मेकिंग है, ऐसे ही आपकी जो है ब्यूटी पार्लर है। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्म है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें आपका सोल ट्रेड ही क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो इट इज द लास्ट फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप दैट it is suitable for a special form of business. A special form of business, there is need only a one person who can manage all the activity of the business organization himself, and all the invested amount which is requirement for running and start a particular business, the complete amount will be invested by a single person. So it is suitable for some special form like as the agriculture, job of stitching, sweet making, beauty parlor and many more business. They are the smart soul trade of the business organization is suitable. Today we discussed about the form of business organization, the soul trade as well as the feature of the sole proprietorship. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.